So we were studying canonical form of second order equation. First is canonical form of hyperbolic equation. So you start uh, with with condition b square minus ac is always positive. So we write canonical transformation, then a b c. Since b square is always positive, so you pick a or c equals 0. And by solving those, by fitting a or c equals to 0, you got two first order equations. By solving those equations, we can find xi and eta. So from these equations, dy by dx equals minus mu1. And last ratio gives us that xi remain constant along the characteristics. So also you can write here mu1 and mu2 are roots of the equation. Uh, in short, you can write a mu square to b mu plus c equals to 0. Okay, so if you look this equation, so you can take xi x equal to m and xi y equal to 1. So you got quadratic a am square plus 2bm plus c, or in mu. So or just write xi x square equal to mu and xi y equal to 1, or you write ratio xi x by xi y equal to something. So by solving that quadratic, you got two roots mu1 and mu2. So in conclusion, so we choose xi and eta from solution of first order PD, then denote fx and f and g, which are solution of characteristics equations. So dy by dx equal to minus mu1 and dy by dx equal to minus mu2. For example, write the canonical form. Write the canonical forms and y is negative. So you can check when y is negative, b square minus ac, b is 0,
So this is positive. So equation is hyperbolic. Okay. So then go back and start. If you look, so first step is to uh, solve these two OD dy by dx equal to mu. तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे. सो वी विल राइट दिस क्वाड्रेटिक a mu square plus 2b mu plus c equals to 0, and then we will find two roots, and from these two solutions you will pick xi and eta. So firstly you solve a mu square plus 2b mu plus c equals to 0. So in short, so which is y mu square plus 1 equals to 0. So you got 2 mu 1, two roots, which are okay. Then सर ये कैसे किया? क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, म्यू को इसको. सर ये ऊपर से वैल्यू भरी है वाई की और क्या? हम्म. बी और एसी की वैल्यू पुट की है? हाँ. ठीक है सर. A is y, b is 0, mixed derivative, c is 1. So then we solve two family of characteristics. So which are dy by dx equal to minus mu 1 and dy by dx equal to minus of mu 2. तो इन ओडी का सलूशन निकाल लो. एक ओडी बनेगी dy by dx इक्वल्स टू, एंड दूसरा ओडी बनेगा so you can separate the variable and integrate. ठीक लिखा मैंने? हाँ? Just integrate. So solutions are, एक solution तो बनेगा 2/3 और दूसरा solution बनेगा और यही आपके जाई और ईटा हैं जो उनके सॉल्यूशन हैं. सो वी सेट जाई किसी को जाई कह दो, किसी को आप ईटा कह दो. और हमने कहा था ना कि जाई विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये फैक्टर हैं दैट विल रिमेन कांस्टेंट along those characteristics. So write them xi and eta. अब आपने इक्वेशन में फिट करनी है ये वैल्यू सारी xi और eta का. तो फिट करने के लिए अब आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा. यू नो चेन रूल? तो पहले इनका
डेरिवेटिव हमें चाहिए होगी, बीच में डेरिवेटिव कर लेते हैं. You need derivative of first with respect to x and y both. x के सेंस में करोगे 1 आ जाएगा, y के सेंस में करोगे what you got. ईटा का x के सेंस में, ईटा का डेरिवेटिव y के सेंस में. पर y नेगेटिव है तो माइनस y का स्क्वायर रूट है, दैट मेक्स सेंस. सो यू हैव रियल सोल्यूशन. ओके, नाउ राइट चेन रूल जो हमने लिखा था ना पीछे बिगनिंग में. सो राइट दीज इक्वेशंस. ओके, राइट ux, uy, uxx, uyy, मिक्स डेरिवेटिव यू डोंट हैव. अब प्रैक्टिकली आपने करना है ये सारी वैल्यू निकाल के, यहाँ तो हमने सीधा लिख दिया था ना. सो फाइंड ऑल वैल्यूज एंड फिट इन टू इक्वेशन एंड देन सिंप्लीफाई. दैट वुड बी canonical form. Okay, so using chain rule, आप इनकी वैल्यू लिखना डेरिवेटिव का पूरा. u जाई साथ में जाई x आएगा विच इज 1, देन u ईटा. उन फार्मूलों में वैल्यू फिट कर दो जो पीछे लिखे थे आपने. u जाई, fit all values there, then write uxx which is u xi plus 2u xi eta. So directly you need second derivative, but you will compute second derivative from the first derivative. U xi plus 2y u xi eta minus y u eta eta plus minus y minus half u xi minus u eta. Check those value. Therefore, fit into given equation, which is yuxx plus uyy. इसमें वैल्यू फिट कर दो सारी. फिट करके सिंप्लीफाई करना है. आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर. इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दो uxx में. You will see that this will cancel. Okay, maybe और टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी u इटा इटा वाला भी. तो मिक्स वाला बचेगा, ये 4 टाइम हो जाएगा. ठीक है, मिडल वाला टर्म यहाँ y आ जाएगा ना ऊपर वाले में, तो 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा और बाद में ये बचेगा बस. तो y पावर माइनस हाफ ये हाफ तो नहीं आएगा, आएगा हाफ, ये हाफ तो नहीं आएगा. एक बार चेक करना यहाँ हाफ तो नहीं आ रहा. हाफ आएगा नहीं. ठीक.
अच्छा ये भी यूज होंगे ना, जाई एक्स वाई और ईटा एक्स वाई, तो ये भी लिखने हैं आपने। यहाँ पे डेरिवेटिव लिखे हैं आपने। You also need to write xi xy, which would be 0, कांस्टेंट है ना xi x, और xi y का x के सेंस में करोगे दैट वुड बी 0, ईटा एक्स वाई विल बी 0। चलो चेक करना है इसको, फैक्टर को। आई थिंक इट 2 इज हियर। तो लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने y को एलिमिनेट करना है, एक्स वाई को एलिमिनेट करना है। राइट होल इक्वेशन इन xi एंड ईटा। अब यहाँ पे जो रिलेशन थे, दीज रिलेशंस, यहाँ से आप y यूज हो रहा है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो फ्रॉम दीज इक्वेशंस। तो इनको माइनस कर दो। सो आल्सो xi minus eta, that would be 4/3 minus y 3/2। therefore इसमें फिट कर दो। therefore u xi eta so this is the canonical form of given equation। यहाँ y का वैल्यू फिट कर दो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। y की -3/2 का फिट कर दो। y निकालना है तो दोनों साइड पावर 2/3 कर दो। सो फिट y वैल्यू हियर and write the given equation into xi and eta। So final transformed equation in xi and eta is known as canonical form। थोड़ी कैलकुलेशन चेक करना। आई डोंट हैव इंटरमीडिएट कैलकुलेशन प्रॉपरली। चेक करके मेरे को बताना कि ये सही है लिखा है कि नहीं, इसका डाउट है मेरे को यहाँ थोड़ा। कर लोगे चेक? यस सर। डेरिवेटिव भी करने हैं। यस सर। पीडी को सॉल्व करने के लिए इसमें ट्रांसफॉर्म करने का क्या बेनिफिट हुआ? वो रहा तो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। हाँ, इसमें नहीं हुआ, आगे हम देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम होंगी कि वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ये तो नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल है जो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपका। मतलब हर बार तो नई ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करते, सम टाइम दे हेल्प। अब इसने वैसे तो एक काम तो अच्छा इसने किया है। इफ यू गो सम न्यूमेरिकल एनालिसिस और समथिंग, इसमें 2 डेरिवेटिव थे ना, सेकंड 2 डेरिवेटिव थे, इसमें सेकंड एक ही रह गया। बाकी तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। इफ यू यूज न्यूमेरिकल एनालिसिस यू कैन इजीली सॉल्व दोज इक्वेशंस। तो डेरिवेटिव 2 थे, सेकंड एक बन गया। और कई बार होगा कि बिल्कुल सिंप्लीफाई भी हो जाएगा ये। Second category is parabolic equations। So parabolic के लिए क्या कंडीशन थी? So b square minus ac equals to 0 at every point
तो इसको जीरो कब बना सकते हो आप? हम्म? या we find xi and eta so that कि ये चीज हमेशा ट्रू रहे. So if I take a equal to 0, तो क्या होगा? So this implies b equals to 0. So we look for the transformation so that a equals to 0, and which further imply that b equals to also 0. So situation will be similar to previous one hyperbolic equation, but one thing will be different here. यहाँ पे था आपका जो, अब देखो आपको दो डिफरेंट कैसे मिले थे? बाकी तो सब कुछ सेम है, b बाई ए, और बी स्क्वायर माइनस ए सी के आगे जो साइन था, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, इसीलिए दो डिफरेंट बनाए हैं आपके, नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंट साइन थे. अब आपके पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी इज 0. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज 0. सो आवाज आ रही है? Yes, sir. So b square minus ac will be 0. So you got only 1 factor. one, characteristics. तो दूसरा फिर आपको निकालना पड़ेगा इसमें. So case is similar to previous one. So a की वैल्यू क्या थी? a xi x square plus 2b xi x xi y plus c xi y square equals to 0. Since b square equal to ac, आप इसके फैक्टर जैसे हमने पहले किए थे वो फैक्टर कर लो, आप चेक करना चाहो तो, वैसे हमने कर रखे हैं पहले. फैक्टर करने का तरीका क्या है? एक को आप म्यू लिख लो, दूसरे को 1 कर लो, और राइट रेशियो टू बी बाई ए जाई एक्स वाई प्लस बी स्क्वेयर. सी आ जाएगा आपका सी बी स्क्वेयर बाई ए, तो सी बाई ए है, बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर लिख सकते हैं ना हम इसमें. सी को मैंने लिख दिया बी स्क्वेयर बाई ए, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है. जैसे हमने बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 है, तो उसमें तो दो डिफरेंट सोल्यूशन आए थे, इसमें आपका क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये. ठीक है. सो दैट म्यू, सो हियर म्यू which is minus b by a is a multiple root, is a double root of, वो इक्वेशन है, सेम है, हाइपरबोलिक सेम चीज है जो हमने इक्वेशन लिखा था, बट यहाँ पे मल्टीपल रूट है, ट्वाइस है. ठीक है, बाकी मैं डिटेल स्किप कर रहा हूँ. सो वी लुक फॉर सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडी xi x माइनस म्यू xi y equals to 0 as we did for hyperbolic equation.
parabolic and hyperbolic, they have same same theory. So you will got one solution. Okay, so one solution you got from जो रीजनिंग पहले था. So the solution xi is constant along the characteristics determined by equation so conclusion क्या है. So you got one. We get one solution fxy equal to c1 and denote xi equal to fxy, and we pick eta in such a way. अब हम जकोबियन की कंडीशन पे जाएंगे, और तो कुछ था नहीं, एक था कि जकोबियन आपका नॉन जीरो होना चाहिए. तो ईटा आपने खुद पिक करना है, सो दैट डिटर्मिनेंट जकोबियन वाला जो था उसको सॉल्व करोगे. जाई एक्स ईटा वाई माइनस जाई वाई ईटा एक्स, दैट इज नॉन जीरो. सो पिक अनदर वेरिएबल. थिंक सिंपल. उसको देख के थोड़ा सिंपल खुद ही सोचना है हमने कि हम क्या पिक करें. टेक एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स. कुछ सिंपल सा फंक्शन लेना है, यूनिक नहीं है. ठीक है, आप एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं. सो ये चीज जो नॉन जीरो कर दे. सो थिंक इन दैट वे. बाकी सब कुछ हाइपरबोलिक से सेम है. फॉर एग्जांपल, convert this equation x square uxx minus 2xy uxy plus y square uyy plus xux plus yuy equals to 0. So x is positive. So write it canonical form. So you can write here b square minus ac, which is x square y square minus x square y square. So this is equals to 0. ठीक है. फिर आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है. वी सॉल्व क्वाड्रेटिक a mu square plus 2b mu plus c equals to 0. So this quadratic और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. यू कैन चेक x mu minus y. So mu equals to y by x. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर. देन यू सॉल्व dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू, यानी कि माइनस y by x. इसका इंटीग्रल कर लो. ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लॉग में आएगा. ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो दिस इज माई जाई. सो वी टेक xi xy equals xy, and we take eta तो उस टाइप के फैक्टर देख के सोचना है. अगर स्केयर आ जाए एक्स के तो स्केयर में सोच के देख लो आप.
1 डिग्री आ रहे हैं तो 1 डिग्री में सोच के देख लो, x सोच के देख लो, y सोच के देख लो। तो अगर आप x लेते हो देन यू कैन चेक जाई x ईटा y माइनस ईटा x जाई y कितना आएगा ये? जाई x y ईटा y 0 माइनस ईटा x 1 and जाई y x, so this is minus x। उसने कहा है कि x पॉजिटिव है, so this is non-zero, so I can take this simple eta, okay। So now we transform xy variable into xi and eta, so using chain rule, जो चीज आता जाए आप लिखते जाना, बीच में मैं फार्मूलों में वैल्यू फिट करनी है आपने जो फार्मूले थे। दिस इज ux, दिस इज uy, दिस इज uxx, दिस इज मिक्स डेरिवेटिव्स। इसमें सारे चाहिए, मिक्स भी चाहिए आपको। एक्स वाई यू जाई जाई प्लस एक्स यू जाई ईटा प्लस यू जाई, देन फाइनली यू वाई वाई विच इज एक्स स्क्वायर यू जाई एक्स जाई। यू कैन चेक, ठीक है, उसमें वैल्यू फिट कर देना जो आपके थे चेन रूल में। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, सो over equation has all derivatives, so second derivative, mixed derivative, first derivative, all, so fit all values। ये आप सीधा कर लो, इसमें उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, यू एक्स एक्स को, ठीक है, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, मिक्स को माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दो, यू वाई वाई को वाई स्क्वायर से, यू एक्स को x से और इसको y से, फिर सबको ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे so many term will cancel and you got x square u eta eta plus x u eta equals to 0, और x पॉजिटिव है, एक x को आप डिस्कार्ड कर सकते हो, so u eta eta प्लस फाइनली ये आ जाएगा, और x इक्वल टू ईटा हमने सपोज किया ही है, ये ईटा ही है आपका, ठीक है। x को चेंज कर दो। अब ये देखो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है आपसे, यू ईटा ईटा माइनस 1 बाई ईटा यू ईटा, क्या आएगा इंटीग्रेशन, सिर्फ सेम डेरिवेटिव है, यहाँ इसको थोड़ा डब्ल्यू यू ईटा पर डब्ल्यू मान लो, तो ये आएगा डब्ल्यू ईटा इक्वल टू माइनस 1 बाई ईटा डब्ल्यू, इंटीग्रेशन कर दो, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, इधर डी ईटा लॉग में आएगा डब्ल्यू, नहीं डी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डी ईटा बाई ईटा, हाँ, तो डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाई ईटा, जो कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन आप ईटा के सेंस में कर रहे हो तो कांस्टेंट के अंदर जाई होगा, ठीक है, कांस्टेंट को जाई का फंक्शन लिखना है, तो डब्ल्यू को फिर डाल दो यू ईटा, एक बार फिर इंटीग्रल कर दो, सो यू गॉट यू विच इज अ फंक्शन ऑफ जाई ईटा इक्वल टू लॉग ईटा ए एक्स जाई साथ में एज इट इज प्लस कांस्टेंट बी दैट विल फंक्शन ऑफ जाई। So this is the solution of canonical form। अब बैक एक्स वाई में जाना चाहो आप, एक्स वाई में यू कैन गो बैक इनटू एक्स एंड वाई,
अब जाई और ईटा का वैल्यू डाल दो. So in x and y variable, you have uxy equal to ax xi. Xi is xy. Eta is x. So this is the solution with two arbitrary constant a and b. ठीक है? Xi और eta का वैल्यू फिट कर दो, so you got solution in that. क्लियर है इंटीग्रेशन? हाँ? सर ये फंक्शन ऑफ जाई कैसे आया? पार्शियल डेरिवेटिव है जब इंटीग्रल करते हो, जब ये x के सेंस में करोगे तो कांस्टेंट में कंटेन y. अब उल्टा जाओ ना, कांस्टेंट में जाई क्यों डाला है? पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो जो टर्म जाई वाली होगी वो वैनिश हो जाएगी ना. जैसे आप कांस्टेंट नहीं आता इंटीग्रेशन में, अगर अगर वन वेरिएबल है तो कांस्टेंट आता है, टू वेरिएबल है तो दूसरा फंक्शन तो आ ही सकता है ना. अब इसमें बैक जाओगे, इसको ईटा के सेंस में डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट जिसके अंदर जाई की टर्म होगी वो तो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा. दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट. ठीक है. ठीक है. ओडी में आप सिंपल में करते थे ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता था. पीडी में जिस वेरिएबल के सेंस में आप इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है, आएगा तो कांस्टेंट, बट दूसरा वेरिएबल तो डायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, दूसरे डेरिवेटिव को तो जीरो कर देंगे ना पार्शियल करोगे आप. कांस्टेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि जाई हो उसके अंदर, बट दैट मे कंटेन. ये क्लियर है इंटीग्रेशन सबको? ये कैसे किया? यस सर. कैसे किया? ये u का ईटा के सेंस में डबल डेरिवेटिव है ना, इसको w मान लिया भी सिंगल जब किया होगा u का ईटा के सेंस में, तो जब इसको सिंपल ओडी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, d w by d ईटा इक्वल टू -1 by ईटा into w. तो फिर वेरिएबल सेपरेबल से हो सेपरेट जाएगा. करके हो गया. ठीक है. यस सर. जब इंटीग्रल कर रहे हो तो ट्रीट इट ओडी से के सेंस में ट्रीट करो. ये आप तब कर सकते हो जब एक वेरिएबल प्रेजेंट हो ना, सेपरेट हो गया ना, ये यस इतना ही है, सिर्फ जाई नहीं है. अगर मिक्सअप होता देन यू कैन नॉट प्रोसीड. तो सो यू कैन लुक फ्रॉम दिस एग्जांपल. सो गिवन इक्वेशन वाज टिपिकल वन दैट हैज एवरीथिंग, that has second derivative with respect to x y, makes सब कुछ है, but in canonical form you only have second derivative and first derivative in one variable only, directly eta के sense में. So that is much simpler form. So this is canonical form. So this is canonical form, and this is the solution of canonical form. And you can go, inverse function says that if Jacobian is non-zero, you can go back. And finally, this is the solution of given equation. And solution in this form is known as, कौन सा solution है? General solution, complete integral, कौन सा है? दो कांस्टेंट है ए बी, और तो फिर दो कंप्लीट इंटीग्रल. कंप्लीट इंटीग्रल है. Okay, so tomorrow we will consider case third, which will be elliptic. And also you can, here 2 points are important. So we were saying characteristics. So for hyperbolic, you got two real characteristics. दो मिले थे ना, दो. For parabolic, you got one solution, one characteristics जाई. दूसरा आपने निकाला है ईटा से. And in elliptic, we will see that you don't get real characteristics, you will get imaginary. So we will solve again that example जो हमने इसमें किया था, canonical form ये किया था ना,
अब इसमें कंडीशन को अगर आप बदल दो, इफ यू टेक y पॉजिटिव, then you got square root minus y, that would be imaginary. So in that case you will get imaginary solution, and working strategy would be same, वो सारा कुछ same ही रहेगा, but you will get imaginary solution. But we are solving PD in real domain, so you will convert those imaginary into real. ठीक है, working strategy would be same. If we had time we can, okay we don't, okay we will continue tomorrow. Excuse me, sir. हाँ जी, सर मेरी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, तो सर जो आपकी नम मैथ्स पे साइट है वहाँ पे यूट्यूब पे लिंक है आपके, हाँ तो वहां से कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, तो वीडियो डाले हैं ना, वहां से देखो आप एक बार, ठीक है। ठीक है सर। सर और इज देयर एनी मिड टर्म एग्जाम सर? वो देखेंगे अभी, ठीक है। ओके सर।